Good afternoon children, myself Vaibhav Kulkarni, TGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya Osmanabad. I welcome you all in my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. You might have seen and enjoyed and learned my videos of class 9th standard and 10th standard. Even we have also taken up a basic foundation course for the students from 6th to 10th standard, that is basic maths for all. So I think the videos you might have enjoyed it and you are using it also for self learning purpose. So kindly use the video, share with all, comment in the comment box and subscribe it so that you will always get my updated videos. Thank you. In the topic arithmetic progression, exercise 5.2. The question reads, an AP consists of 50 terms. See, let us underline the key points. How many terms AP consists of? AP consists of 50 terms. What does it mean? It means that n is equal to 50. It means that n is equal to 50, of which third term is 12. What does it mean? It means that A3 is equal to 12. A3 is equal to 12 and last term is 106. Now this is a tricky word. Last term, AP consists of 50 terms and the last term is what? 106. That means what? 50th term is 106. 50th term is 106. So what you want? You want the 29th term. That means you want A29 how much? Read the question properly. An AP consists of 50 terms. This is a very important and a crucial statement. AP consists of 50 terms. 50 term means what? N is equal to 50. Third term is 12. That means A3 is equal to 12. And last term is 106. That means 50th term is 106. And find the 29th term. See actually how I read the problem, how I use it very systematically, what formulae should be used. The first thing that I always prefer is I should not lose the mark. And if I should not lose the mark, I should write some steps. The first step that I can write is an is equal to a plus n minus 1 into d. Sir, why did you write this formula? Because what I am asked is 29th term मुझे पूछा है. तो 29th term अगर मुझे पूछा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n की वैल्यू 29 है, a मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू है 29 माइनस 1, मुझे d पता नहीं है, a पता नहीं है. अगर मुझे कोई d बता दे, अगर मुझे कोई d बता दे और मुझे कोई a बता दे तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ? 29th टर्म बता सकता हूँ. तो आप सोच रहे होंगे सर सॉल्यूशन तो यहाँ से करना चाहिए था, आपने तो यहाँ से करना शुरू किया. सही है बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये लास्ट स्टेप है. आप बोलोगे सर व्हाट अ स्ट्रेंज टीचर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट टर्म, अंत में आप लास्ट स्टेप लिखते हो और पहला स्टेप कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ ये लिखने का उद्देश्य क्या है. वाई आई हैव रिटन दिस स्टेप एंड वाई आई हैव नॉट रिटन द प्रीवियस स्टेप्स. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन स्टेप्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो. इसका ये क्या बताना चाहता है? ये ऐसे बताना चाहता है कि A29 अगर मुझे चाहिए तो फर्स्ट टर्म की मुझे ज़रूरत है, कॉमन डिफरेंस की मुझे ज़रूरत है. सर वो कहाँ से आएगा सर? वही तो मेरा अगला स्टेप है, वही तो मेरा फर्स्ट स्टेप है. तो ये थर्ड स्टेप 12 है, 50th टर्म 106 है. तो यहाँ से मुझे A निकालना पड़ेगा, यहाँ से मुझे D निकालना पड़ेगा. From the third term and the 50th term, I should find the first and the last term, first term and the common difference. That means what I should do is
a+2d आपको दिया है, a3 आपको दिया है 12, और a3 का मतलब होता है a+2d। कितना दिया है बच्चों? 12। a3 अगर आपको 12 दिया है यानी a+2d आपको 12 दिया है। 50th टर्म 106 दिया है, इसका मतलब है a+49d इज इक्वल टू 106। थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म इज 50 टर्म्स आर देयर, सो इट इज लाइक दिस। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये प्लस a है, तो मैं अगर साइन चेंज कर दूं तो प्लस a का साइन चेंज किया तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। प्लस a माइनस से गेट कैंसल्स, 2d माइनस 49d इट इज माइनस 47d, प्लस 12 माइनस 106, so 6 minus 2 is 4 and 10 minus 1 is 9 minus 94. So common difference is equal to minus 94 divided by minus 47 and that is equal to how much? Plus 2. Minus cancels with minus. Now you are getting d as 2. So what you got here? You got d. You got d. Now what else you need? You need a. a आपको चाहिए, तो a कहाँ से लाओगे? You will put it in this equation. a plus 2 into 2 is equal to 12. So a plus 4 is equal to 12. So a is equal to 12 minus 4, that is equal to 8. So I got the first term. I got the first term. So 8 plus 56. 28 into 2 is how much? 56. So 8 plus 56, how much it is? 64. So children, 29th term of this AP is how much? 64. That means what? क्या किया आपने? अगर आपके पास एक AP है जिसका थर्ड टर्म 12 है, 50th टर्म 106 है, तो 29th टर्म आपको कितना मिलेगा? 64। यानी आपको फर्स्ट थर्ड टर्म बताया, आपको 50th टर्म बताया, आपने बीच का 29 टर्म आपको बताया। सो इस तरह से इस फॉर्मूले का उपयोग आपको करना है। दिस इज द वे इन विच यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8. विच टर्म इज 0? विच टर्म, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। विच टर्म इज 0, यानी एक AP है हमारे पास जिसका थर्ड टर्म 4 है। देखो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ वैसे मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ। थर्ड टर्म, सो व्हाट आई राइट हियर? थर्ड टर्म कितना दिया? थर्ड टर्म 4। थर्ड टर्म 4 दिया है। उसके बाद क्या दिया है? नाइन्थ टर्म -8। नाइन्थ टर्म -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी AN 0 कब होगा? AN 0 कब होगा? AN 0 कब होगा इसका मतलब क्या है? A plus n minus 1 into d 0 कब होगा? देखो कैसे मैं सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हैं अजीब मैथ्स टीचर है जो लास्ट स्टेप पहले लिखते हैं। मैं लास्ट स्टेप फर्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में अगर मैंने इस तरह से सॉल्व किया होता तो आप पूछते सर क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं कहा है सॉल्व करने के लिए, आपने क्यों इसको ऐसे सॉल्व किया? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत थी। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, यह कब 0 होगा, यानी AN 0 कब होगा? AN 0 कब होगा, यानी A plus n minus 1 into d is equal to 0 कब होगा? यानी A की वैल्यू अगर आप हमको बताओगे, D की वैल्यू अगर आप मुझे बताओगे, तो हम आपको बता सकते हैं कि ये 0 कब होगा। सर फ्रॉम वेयर शुड आई गेट दैट वैल्यू ऑफ A and D? Oh, that is the question that we have to get from the first sentence. Third term is 4, ninth term is -8. From here you should get A and from here you should get D.
तो यहाँ से हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढ सकते हैं? थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। नाइन्थ टर्म का मतलब होता है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड आप जानते हो। तो ये प्लस अगर a है तो ये माइनस a होगा, प्लस 8 है तो -8 होगा, और माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करते हो बच्चों तो क्या होगा? प्लस से माइनस से कैंसिल होगा, 2d में से 8d चला जाएगा तो कितना होगा? -6d होगा। 2d में से 8d चला गया तो -6d होगा। और यहाँ पर 4 प्लस 8 कितना होगा बच्चों? 12, यानी d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -6। बेसिक मैथ्स का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा बच्चों तो मैंने आपको बताया था कि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस कितना आता है? माइनस। मैं अपने बच्चों को बार बार सलाह दूंगा कि बेसिक वीडियो देखिए आप। ये सारी बातें जो आप गलती करते हैं, देखिए अक्सर बच्चों को मैंने देखा यहाँ पर +2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम है। तो कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया बच्चों, तो इसमें से जो मुझे d चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मुझे a की भी ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो मुझे d की ज़रूरत थी उस वो d तो मुझे मिल गया। अब किसकी ज़रूरत है? n-1 मैं ऐसे लिख देता हूँ। मुझे a की ज़रूरत है, तो a कहाँ से लाएंगे? हम यहाँ से लाएंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो यानी प्लस ऑफ माइनस होगा -4। सो इफ आई ट्रांसपोज इट टू राइट साइड देन इट विल बिकम व्हाट? a इज इक्वल टू 8। हाँ, हमको क्या मिल गया? यहाँ पर 8 मिल गया। अब हम बड़े आसानी से आपको बता सकते हैं। तो n-1 इंटू -2, बच्चों इस +8 को मैंने अगर उधर भेज दिया तो क्या होगा? एक्चुअली उधर भेज दिया, बेस्ट वर्ड इन मैथमेटिक्स इज ट्रांसपोज किया तो क्या होगा? -8। तो ये होगा n-1 इज इक्वल टू -8 बाय -2, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना होगा? 4। और ये -1 मैंने अगर उधर कर दिया तो n इज इक्वल टू वॉट? 5। -1 अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या होगा? +1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक AP है जिसका थर्ड टर्म 4 है, जिसका 9th टर्म -8 है, तो 5th टर्म 0 होगा। आपको यकीन नहीं होता मेरे जवाब का? आप चेक करके देख लो ना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? A है। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? 2 है। चलो 1 मिनट देख लेते हैं हमने जवाब सही किया है कि नहीं किया। Every time it is not possible for you to verify like this, but since it's a small problem, I'll verify and show it. See, first term is 8, 8 minus 2, second term is 6, 8 minus 2, second term is 6, 6 minus 2, 4, 4 minus 2, 2, 2 minus 2, 0. That means yes, what I said is right. We started with 8 and 5th term is 0. So that means what? अगर आपके पास AP थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया है तो 0 कब आएगा? ये भी हम कर सकते हैं। See the beauty of this formula. See the beauty of this formula. nth term of an AP, an is equal to a plus n-1 into d. Now let us approach the next problem. Keywords are very important in mathematics. 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. 17th term exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. 17th term, see how I am interpreting. Whatever things are given in words, I am interpreting it in terms of equation. शब्दों का खेल जो है उसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या है शब्दों का यहाँ पर खेल कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म के अंदर 7 जोड़ने के बराबर है। यानी मेरे पास एक AP है जिसका 17वां टर्म अगर मुझे चाहिए तो 10वें टर्म के अंदर 7 जोड़ दो, यानी 10वें टर्म के अंदर अगर 7 जोड़ दोगे तो 17th टर्म मिलेगा। इफ़ आई ऐड 7 टू द 10th टर्म आई गेट 17th टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा?
चलो हम एक काम करते हैं, 17th टर्म का मतलब होता है a प्लस 16d, 10th टर्म का मतलब होता है a प्लस 9d प्लस 7। तो बच्चों ये प्लस a इधर अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये माइनस a हो जाएगा, और मेरे ख्याल से उतना मुझे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई थिंक आई कैन कैंसल इट। सो व्हाट रिमेन्स हियर इज 16d, ये प्लस 9d इधर ट्रांसपोज कर लूं तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16d में से 9d हटा दीजिए आप, आपको मिलेगा 7d इज इक्वल टू 7। तो 7d इज इक्वल टू 7 अगर है तो d इज इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कॉमन डिफरेंस इज 1। सो मेरा कहने का आपको तात्पर्य यह है, व्हाट आई वांट टू टेल यू माय डियर चिल्ड्रन इज यू शुड बी एबल टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, इंटरप्रेट द वर्ड्स इनटू इक्वेशंस, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। जो शब्द है, शब्दों को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कला, ये खूबी, ये स्किल अगर आप में आ गया तो मेरे ख्याल से कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम इजी है। मैथ्स इज इजी, मैथ्स विल बी इजी, मैथ्स वाज इजी। मैथ्स, सो फॉलो व्हाट आई से। फॉर एग्जांपल, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 dash 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 will be 132 more than 54th term। यानी हमें एक AP दे रखा है, कौन सा AP दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, 27 दे रखा है, 39 दे रखा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 132 मोर देन 54th टर्म, यानी क्वेश्चन का मतलब क्या निकलता है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो सबसे पहले देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं। कौन कौन सी बातें आती है? पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आती है कि nth टर्म ऑफ एन AP अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है बच्चों, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लगभग पिछले 7 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर 54th टर्म की अगर वो बात कर रहा है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू 54 है, यानी 54th टर्म मैं यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू a मुझे चाहिए। तो इस AP को देखने के बाद मुझे a तो बड़ी आसानी से मिल रहा है। a कितना मिल रहा है बच्चों? a 3 मिल रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो मुझे ऑलरेडी उन्होंने दिया है, कितना दिया है? 54 दे रखा है। 54 दिया नहीं दिया है? यस दिया है। तो 54 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस मुझे ढूंढना है। कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बार बार लिखिए पेपर के अंदर, बार से हमेशा मैथ्स के अंदर वन थिंग यू मस्ट नॉट फॉरगेट इज यू शुड बी ऑलवेज परफेक्ट विद द स्टेप्स। इफ योर स्टेप्स आर करेक्ट ऑटोमेटिकली यू विल गेट सम मार्क्स, बट इफ एट ऑल योर आंसर्स आर राइट but steps are wrong, marks you will not get. So always be perfect with your steps and always keep on writing the formula, whatever small, even the formula appears to be very small and very simple, even you can say that sir I can do it orally. Okay beta, you can do it orally, but in the examination your written scripts are evaluated and marks are allotted accordingly. So I advise you dear children, keep on writing, even the formula is simple also, keep writing whenever and wherever it required. So 15 minus what is it? 3. How much I'll get? 12. So that means what? Common difference is 12. So what I'll get here? 3 plus 53 into 12.
53 into 12. How much will I get? 3 plus 12 3 is 36. Carry 3. 12 5 is 60. 60 plus 3 is how much? 63. So 54th term is 639. 54th term is 639. Now you will say, sir, उन्होंने तो पूछा ही नहीं आपको 54th टर्म, उन्होंने तो आपसे क्या पूछा है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। सर आपको तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर 54th टर्म के अंदर 132 जोड़ देंगे तो क्या कौन सा टर्म होगा? ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, एक काम करेंगे हम 54th टर्म के अंदर 132 हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए बच्चों, 54th टर्म है 639, उसके अंदर 132 जोड़ना है। वी हैव टू ऐड इट। हाउ मच यू गेट? 9 plus 2 is 1, 3 plus 3 is 6, 6 plus 1 is 7, carry 1, 6 plus 1 is 7 and 7 plus 1 is 8. Kindly verify it again. 9 plus 2 is 11, carry 1, 3 plus 3 is 6 plus 1 is 7 and 6 plus 1 is, I think we should get 7 here, is it? We should get 7 here. So it is 771. So 771 if we have to get, what will be n? ये 771 यानी इस तरह से अगर ये AP चलता रहा तो 51st टर्म आपको 639 मिलेगा और इस 54th टर्म के अंदर अगर मैंने 132 जोड़ दिया तो वो कौन सा टर्म होगा, कब आएगा, कैसे आएगा? तो ये 771 कैसे आएगा वो हमको देखना है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एन आपको दिया है 771, यानी 771 अगर आपको आना है तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए प्लस यानी क्या? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया आपके पास? 12 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे an दिया है, an कितना दिया है यहाँ पर? 771 दे रखा है। तो ये 771 इस तरह से अगर ये AP चलता रहा 3, 15, 27, 39, 639 वगैरह 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 प्लस 132 करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म आएगा उसका n क्या होगा? तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा n माइनस 1 इंटू 12। इस +3 को अगर मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया बच्चों तो वो होगा -3, तो ये हो जाएगा 768। I think I need not explain you 771 minus 3 is 768. So this will be equal to n minus 1 is equal to 768 divided by 12. So my dear children, just see it here. 12 6 72, 12 6 72, carry 4, 48. 48 means 12 4s are 48. So dear children, n minus 1 is equal to 64. So n is equal to 64 plus 1 is how much? 65. So dear children, सर आपने ये सब क्या किया? कुछ नहीं किया है, सीधी सी बात है। एक AP मुझे उन्होंने दिया है, वो कह रहा है 54th टर्म के अंदर अगर 132 जोड़ देंगे तो n कहाँ पर रुकेगा? आगे n रुकेगा 65 पे, यानी इस AP का 65th टर्म जो होगा वो होगा 771। तो सी द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूले।
Maths is beautiful, wonderful, excellent. Enjoy it. How to enjoy? Read the question carefully. Write the formulas wherever required. Present your things in a beautiful and neat way. अच्छी तरह से प्रेजेंट करो. आप देखिए सही में आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगेगा. तो hope children you might have understood what I said. Thanks a lot.